Okay, so in last lecture, uh, we have started chapter 1 of PMP, Project Management Practice. Last lecture, we are trying to understand the formal definitions which have been used throughout this subject of PMP. The definitions are project, what is project? So if we can understand in one line, so we can say project is a step-by-step activity which has been executed, right? Every phase has been connected with each other. Second explanation, if I can remember, is the operations. So if we can say what is operation, so operation is the individual process which have been done to create in the project, right? Next, I can remember that the definition was portfolio. So what is portfolio? The portfolio is the organization's overall record, right? Whatever task, whatever projects, whatever software the organization or individual person has created, the combination of all those projects has been known as a portfolio. If I can remember another definition, that is program, right? That what is program? So program is the combination of multiple similar kind of activities. Those activities which are similar kind of, the combination of all those activities are known as a program. Next one, that is the stakeholder. So in a stakeholder, we can say that directly or indirectly or internally or externally, all the employees or the customers who have connected with us project development, those are known as a stakeholder, right? So I think this much definitions we have done in previous lecture, right? uh, let's start with the last and most important topic of chapter 1, right? If you please note down, this is the last and important for external examination, right? So the question is the skills of good project manager, right? So first of all, we need to identify what is project manager, right? The project manager is a person, right, whose task is to divide the individual processes to the team, right? Whatever team we have created for individual phases of software development lifecycle, the project manager role is to divide the task or divide the activities to individual employees. Another use, or we can say role, of project manager is his task is to monitor, or we can say control, the project development phases which have been developed throughout the project development, right? Whatever task has been given to the employees, those tasks has been completed properly or not. To identify this, the project manager is responsible. Another task, if we can identify the task, or we can say role of project manager, so project manager's big role is to communicate with the customer. Communicate with customer means what? To identify the requirement of customer, to get the feedback from the customer, to report the content, or to report the information to their employees, right? Whoever develop the software, right? So this much basic task or basic roles of project manager. First of all, we need to write, or we need to understand this thing, right? That what is project manager, or what task project manager need to apply. In short, we can say he is the leader, right? He is the leader of whole team, right? Whatever team for development they have created, or organization have created, all control have been manufactured, or all control have been created by project manager. The main, we can say project manager is a main person in project development phases, right? So if we are wanted to add a project manager in our project management team, so we need to identify his skill,
that what kind of skill the project manager need to have, what kind of skills a one project manager need to have. So if we are starting here, the first skill is the communication skill, right? Okay, we all know what is communication, right? But we need to know in how many part this communication is divided. So this communication is divided into two parts, right? First one, communication with customer, and second one, communication with their own employees. Employees in a sense, અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે employees means whatever team they have created, those are known as the employee. If I use the word employee, is equal to or equivalent to the team what they have created, right? So basically two type of skills they require to communicate with customer as well as to communicate with their own employees. So here, first of all, in communication skill, project manager need to clearly identify each and every requirement of customer through communication with customer. They arrange one-to-one meeting, or they arrange video conferencing, or they arrange phone call. With these technologies or with this part of skills, a project manager easily identify the proper requirement of customer. कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर्स को आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो बातें क्या स्किल है और क्या फीचर वो ऐड करना चाहता है, कौन सा पार्ट और कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करना चाहता है, वो बातें कस्टमर को पता नहीं होती क्योंकि कस्टमर टेक्निकल पर्सन नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को करना क्या होता है, कस्टमर को अवेयर करना होता है कि दिस काइंड ऑफ फीचर्स कैन बी एडेड, दिस काइंड ऑफ फीचर्स कैन नॉट बी एडेड, राइट? सो दिस इज द बेसिक स्किल दैट अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू हैव। ओके, अगर हम मान ले कि कोई कस्टमर हमारे पास ऐसा है जिसको आईटी फील्ड का और वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है, और वो अपना अलग अलग फीचर्स और अलग अलग डिमांडें रखता है, वो डिमांड्स उसके बजट के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर फिट नहीं बैठता, तो वो उसको कस्टमर को समझाने का काम, वो रोल बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ दूसरी बात मैंने कही थी कम्युनिकेशन के अंदर, वो कि कस्टमर के पास से जो भी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की है, उस रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को समझाना होता है। मीन्स कि कस्टमर के पास से जो हमने रिक्वायरमेंट ली है उसको टेक्निकल वे में डाल के, टेक्निकल वे में कन्वर्ट करके उसको अपने एम्प्लॉय और अपने टीम मेंबर्स को समझाना होता है। मीन्स का टास्क बाइफरगेट करना होता है। तो ये बेसिक दो पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि कम्युनिकेशन हम कैसे और किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो दो स्किल यहाँ इंपॉर्टेंट होगी, कम्युनिकेशन विद कस्टमर एज वेल एज कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज। जो बातें हमने कम्युनिकेशन करके कस्टमर के पास से हमने गेन की है, जो रिक्वायरमेंट हमने गेन की है, वो इजीली और टेक्निकल वे के अंदर वे में हमें अपने एम्प्लॉयज और टीम मेंबरों को समझाना होता है। तो पहली स्किल और पहली स्किल हम जो कहते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल, राइट? जो एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होने चाहिए, राइट? सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल। ओके, यहां दो वर्ड है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल एंड सेकेंड वन इज प्लानिंग। ओके, पहले मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बारे में बात करता हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल मीन्स व्हाट? मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो और आपका ही खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अंडर 3 या 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जो कि पीएचपी डेवलपर की ओर से काम करते हैं, उनकी स्पेशलिटी और उनकी स्किल वो पीएचपी की है। अगर कोई कस्टमर आए जो आपको एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करने को बोले, तो आप वो प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड डेवलपर अवेलेबल नहीं है, मगर वो कस्टमर है, उनको हम ना नहीं बोल सकते। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। मीन्स व्हाट? कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हो,
जो वो एम्प्लॉयज आपके पास अवेलेबल ना हो तो उनको हायर करें, राइट, हायर करें और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उस एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाइए और वो प्रोजेक्ट कस्टमर के पास से लेके हम हमारे दूसरे कलीग और दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट ऐड करके उसको पास ऑन करें। तो ये जो तीन चार बातें हैं ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कस्टमर आता है जिस स्किल की और जिस रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है वो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से और किस वे में वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो उसका ध्यान रखना, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है, राइट। अगर हम पूरा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट उठा के दूसरी कंपनी में को दे दे और हमारी कंपनी को कोई प्रॉफिट ना हो तो वो भी एक डेड स्किल तक की ओर से देखा जाएगा। हमें कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए तो वो स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। सेकंड इसी स्किल के अंदर का पार्ट है जो है प्लानिंग स्किल। ओके, प्लानिंग मीन्स व्हाट, राइट। यहाँ प्लानिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकेंगे और हमको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, राइट। पहली प्लानिंग शेड्यूल की। शेड्यूल मीन्स व्हाट कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको हमारा प्रोजेक्ट 90 डेज के अंदर खत्म करना हो तो उस 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी फेजेस आते हैं उन इंडिविजुअल फेजेस को कितना टाइम पीरियड हमें देना होगा उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, राइट। तो वो हमारी शेड्यूल का प्लानिंग होगा, राइट। एक प्लानिंग वो होगा कि हम कैसे शेड्यूल डेवलप करें, मीन्स के एनालिसिस अगर हमें करना है तो एनालिसिस का कितना टाइम पीरियड होगा। अगर 7 दिन का हम टाइम पीरियड ले रहे हैं एनालिसिस के लिए तो 7वें दिन हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाद में अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग के लिए हमें 10 या 15 डेज की रिक्वायरमेंट है तो 15 डेज के बाद हमारे पास फुल ब्लूप्रिंट और फुल डिजाइन वेबसाइट की हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सब प्लानिंग करने की बात यहाँ हो रही है, शेड्यूल, प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग क्या होगी, टीम डेवलपमेंट, राइट। कि अगर हमारे पास 3 या 4 एम्प्लॉयज सेम स्किल के हो तो उन 3 या 4 एम्प्लॉयज में से किस एम्प्लॉय को हमें हमारी टीम के अंदर ऐड करना है और किस एम्प्लॉय को हमको किस तरीके का काम देना है, कौन सा वर्क, कौन सी प्रोसेस डेवलप करने के लिए देनी है, वो भी एक प्लानिंग स्किल के तरीके से जाना जाता है। तो यहाँ प्लानिंग में दो पार्ट में हम प्लानिंग को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट शेड्यूल डेवलपमेंट और शेड्यूल का प्लानिंग कि हमें कितने दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, राइट, और उन प्रोजेक्ट का शेड्यूल कितने दिन का होगा। सेकंड प्लानिंग कि हमारे प्रोजेक्ट की जो टीम डेवलप होगी उस टीम में कितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर को क्या क्या टास्क एग्जीक्यूशन के लिए देना होगा, राइट, जिसको हम टास्क मैनेजमेंट भी बाद में लेटर ऑन कहेंगे, राइट। तो पहले हमने किया टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, और सेकंड हो गया टास्क मैनेजमेंट, राइट। तो ये स्किल एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए कि शेड्यूल प्रॉपर डेवलप हो, जो शेड्यूल डेवलप हुआ है उसी शेड्यूल के अनुसार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होना चाहिए। जो टास्क हमने दिया है अपनी टीम को वो टास्क अपने प्रॉपर टाइम के अंदर और एक डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इस सभी बातों का ध्यान रखना वो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल की तरीके से बताया जा सकता है, राइट। तो हमारी दो स्किल अभी तक हुई। पहली स्किल कम्युनिकेशन, उसमें हमने देखा दो भाग है, कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड सेकंड कम्युनिकेशन विद आवर एम्प्लॉयज और आवर टीम। सेकंड स्किल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट कि अगर हमारे पास पूरते एम्प्लॉयज नहीं है तो हम कैसे हायर करें और उस प्रोजेक्ट को हम कैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन को पास ऑन करें और उसमें से प्रॉफिट कमाए, राइट। ये बातें ऑर्गेनाइजेशन स्किल की हो गई। सेकंड है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर भी दो टाइप की प्लानिंग करनी होगी। पहली प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट की कि कितने टाइम में और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है।
और सेकंड टास्क मैनेजमेंट की। और इसमें हम वो कह सकते हैं कि हमारे कौन से एम्प्लॉय को और कितने एम्प्लॉय को क्या क्या प्रोसेस और कितनी कितनी प्रोसेस हमें एग्जीक्यूशन के लिए देनी होगी, क्या टास्क उनके पास परफॉर्म कराना होगा, और उसमें जितने टाइम पीरियड के अंदर जो टास्क हमने दिया है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं, उसका भी ध्यान रखना वो प्लानिंग स्किल के अंदर डिफाइन करता है। तो ये दो स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल, राइट। अब हम मूव करते हैं अपनी तीसरी स्किल के अंदर, जो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, अगर किसी ने सुना हो कन्फ्लिक्ट मीन्स डिजास्टर, राइट। कन्फ्लिक्ट मीन्स, हमें पहले वर्ड को समझना होगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या है कि अगर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मीन्स क्या है पूरा, right? कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कोई टास्क हमने कुछ किसी एम्प्लॉय को दिया हुआ है जो हमने आगे की स्किल में दिया है, अगर वो एम्प्लॉय को वो पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूशन करने में कोई टाइप की दिक्कत आ रही हो, तो तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करना, उसको कहता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स रेज हो रही है और जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, वो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो फिर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो सकता है, वो फिर शेड्यूल का प्रॉब्लम हो सकता है, वो फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जितनी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर फेस होती है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जनरेट करना, राइट, उसको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हमने हायर किया है, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल प्रॉपर होनी चाहिए। इससे हमें पता क्या चलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको दर एक और जितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, उन सभी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना रिक्वायर्ड है, तभी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। अगर उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अगर उसको बजट को हैंडल करना नहीं आता, तो वो बजट का जो भी इश्यूज रेज होगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जो भी हम प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करें, वो प्रॉपर सभी तरीके की टेक्नोलॉजी, सभी तरीके का फेजेस का नॉलेज उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंडिविजुअल फेज में काम करते हो, जो भी प्रॉब्लम फेज हो, राइट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करना, उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, राइट। या तो प्रॉब्लम कोडिंग में हो, राइट, कि कोडिंग करने में कोई दिक्कत आती हो, या तो डिजाइनिंग फेज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि डिजाइनिंग के अंदर हमने 10 वेब पेजेस का बोला हो, मगर 10 वेब पेजेस के अंदर वो कंटेंट फिट ना बैठती हो, कुछ इस तरह के फीचर्स ऐड करने को बोले हो कस्टमर ने जो हमारे बजट के ऊपर निकल जाते हो, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करने का काम वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक। तो ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात है। तो अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव स्किल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट जो स्किल है वो है नेगोशिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल। ओके, नेगोशिएशन मीन्स, अगर ये स्किल almost every girls do have this kind of skill of negotiation, right, and influencing, right. Negotiation means what, कि हमें अपनी बात मनवाना, राइट। मनवाना किसको, दो इंसानों को, पहला हमारा कस्टमर और दूसरा हमारे एम्प्लॉयज, राइट, जो एम्प्लॉय एक्चुअल में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने वाले। ओके, अगर आपको भी पता होगा, राइट, कि इस पैंडेमिक में, अगर आपको तो शायद मास प्रमोशन दिया होगा, मुझे तो पता नहीं है, शायद मास प्रमोशन दिया होगा। अगर नहीं देते, राइट, तो आप सभी को क्या देना होगा, ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन, राइट। तो स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम के लिए हमें इन्फ्लुएंस करना होगा, नेगोशिएट करना होगा कि ऑनलाइन एग्जाम आप दो, ऑनलाइन एग्जाम इज बेटर, ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर। स्टूडेंट्स को कन्विंस होना चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स कन्विंस होने चाहिए कि यस, ऑनलाइन एग्जाम
और ऑनलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑफलाइन इन दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो ये जो आपको मनाना है, आपको जो बात आपके दिमाग में बिठाना है, राइट, उसको हम नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग स्किल की ओर देख सकते हैं, राइट। तो इस बात को लेके, राइट, हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये स्किल कैसे काम आएगी। मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, राइट, अपनी वेबसाइट के अंदर और अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वो कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे करता है, राइट, तो उसका बजट जो करंट बजट है उससे ज़्यादा बजट हो जाएगा और कस्टमर उस ज़्यादा बजट देने के लिए वो कन्विंस हो रहा नहीं है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके, राइट, उसको कन्विंस करना होगा कि सो फार इन दिस बजट, वॉट एवर बजट दे हैव फिक्स, इन दिस बजट दिस फीचर इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कस्टमर को कि नहीं होगा और नहीं कर सकते, राइट। आपको कस्टमर को बेसिकली कन्विंस करना होगा, राइट, कि दिस इन दिस बजट यू कैन नॉट ऐड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, राइट। तो दिस इज नॉट नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग। ऑन अदर साइड, राइट, हमें एक दूसरा किसको नेगोशिएट और इन्फ्लूज करना होगा, हमारे एम्प्लॉयज को, राइट। एम्प्लॉयज को नेगोशिएट बेसिकली किस पार्ट पे करना होता है, उनके शेड्यूल मैनेजमेंट के अंदर। हमें हमारा काम जो टाइम पीरियड मिला है उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कराना होगा अपने एम्प्लॉयज के साथ से, एम्प्लॉय की साइड से, राइट। तो उसके लिए हमें हमारे एम्प्लॉय को कन्विंस करना होगा। मान लीजिए एनालिसिस वाला कोई एम्प्लॉय है तो उसको हम उस एम्प्लॉय को हमें कन्विंस होना करना होगा कि 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर उसे हमें एनालिसिस कंप्लीट करनी देनी होगी। इफ इट इज पॉसिबल और इफ इट इज नॉट पॉसिबल, 7 डेज के अंदर अंदर उसे हमें पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द XYZ वेबसाइट और XYZ एप्लीकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसे हमें 7 डेज के अंदर कलेक्ट करके देनी होगी। ये जो बात कन्विंस कराना है उसे हम नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग स्किल की तरह से देख सकते हैं, राइट। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो अलग एग्जाम्पल है, होम रिलेटेड एग्जाम्पल है कि अगर हमें डिनर पे XYZ डिश चाहिए, वो डिश अगर नहीं अवेलेबल है तो हम हमारे गेस्ट जो भी आए हो और हमारे फैमिली मेंबर हो उनको कुछ अलग डिश के बारे में हमें कन्विंस करना होगा। उस रिलेटेड यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, मगर हमें एग्जाम्पल लिखना क्या होगा, ये जो दो बातें मैंने जो बताई कस्टमर की ओर से और एम्प्लॉयज जो हमारे टीम मेंबर है उनको कैसे हम कन्विंस करते हैं, ये दोनों बातें हमें इस स्किल के अंदर लिखनी होगी, राइट। नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग, बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना होगा, नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग स्किल मीन्स व्हाट, टू कन्विंस कस्टमर एंड टीम मेंबर। सिंपली एक लाइन में हम ऐसे याद रख सकेंगे, नेगोशिएशन एंड इन्फ्लूजिंग स्किल मीन्स व्हाट, टू कन्विंस आवर कस्टमर एंड टू कन्विंस आवर एम्प्लॉयज, राइट। वो कैसे, वो हमने अभी डिस्क्राइब मोड में देखा, राइट। तो ऐसे हम इस स्किल के अंदर बात कर सकेंगे, नेगोशिएशन है इन्फ्लूजिंग स्किल। नेक्स्ट है लीडरशिप। ओके, लीडरशिप स्किल मीन्स व्हाट, मैंने जब प्रोजेक्ट मैनेजर का डेफिनेशन बोला और उसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया तभी मैंने इस वर्ड का यूज किया था, लीडर, राइट, टीम लीडर, राइट। तो लीडरशिप स्किल मीन्स व्हाट, लीडरशिप मीन्स हमें हमारे विजन, जो हमारा गोल है, राइट, जो हमें गेन करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से, ये सारी बातें, राइट, हमारे पास अवेलेबल है थ्रू इंफॉर्मेशन, राइट। ये सारा काम, ये सारा टास्क हमें हमारे एम्प्लॉयज के पास से, जो हमारे अंडर काम करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स है, उनके पास से ये हमें हमारा विजन क्लियर कराना है, उसे लीडरशिप स्किल कहते हैं। जो हमने गोल सेट किया है वो गोल हमें हमारे एम्प्लॉयज के पास से टास्क करा के, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करा के हमें हमारा विजन और वी कैन से हमारा गोल वो अचीव करना है, उसको हम एज अ लीडरशिप स्किल की ओर से जाने जाते हैं। ओके,
इसमें भी दो पार्ट हमें देखने होंगे, राइट, कि लीडरशिप स्किल कैसे वर्क करती है, राइट। तो अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को बोल दें या धमकाए कि 7 दिनों के अंदर हमें ये काम चाहिए, तो हो सकता है वो काम प्रॉपर से ना हो सकता है वो 7 डेज के अंदर वो काम करके दे भी खरी, ना भी दे, राइट। तो वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो काम होता है वो भी मैनेजर का होता है कि कैसे अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करे, राइट, अपने लीडरशिप का यूज करे टास्क डेवलपमेंट के अंदर, टास्क डिवाइडेशन के अंदर, राइट। ये सब बातें लीडरशिप स्किल के अंदर डिफाइन करती है। ओके, यहाँ लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, और वी कैन से मैनेजमेंट, ये दोनों अलग बात है, राइट। मैनेजमेंट बात अलग है और लीडर एक बात अलग है। लीडर मीन्स व्हाट, लीडरशिप स्किल के अंदर एक बात और हमें ऐड करनी होगी, वो क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स जो मैंने अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बोला कि जहां भी अपना एम्प्लॉय और अपना टीम मेंबर, राइट, जिस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल ना हो, राइट, तो वहां एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ लीडर, he need to help that employee or that team member to execute particular task, right. Leader need to have proper technical knowledge, whatever technology they have used in their organization. A leader or a project manager do have proper technical knowledge, although he can solve the issues whatever our team members can face it. अगर हम ये बोल दे कि हमने टास्क हमारे टीम मेंबर को दिया है, जो भी प्रॉब्लम हो वो खुद सॉल्यूशन उसका दे दे, तो वो एक बेटर लीडरशिप स्किल हम नहीं कह सकते। लीडरशिप स्किल मीन्स व्हाट, हमें आगे चलना है मगर हमें हमारे साथ वाले जो टीम मेंबर है उनको साथ में लेके आगे बढ़ना है, राइट। तो बेसिकली ये एक लीडरशिप स्किल की ओर से जाना जाता है, जो हमारी चौथी प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल है, सॉरी। नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन। ओके, ये दोनों वर्ड हमने सुने हैं, टीम बिल्डिंग मीन्स व्हाट, मोटिवेटिंग मीन्स व्हाट, राइट। मगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टीम बिल्डिंग का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन का मतलब क्या है, ये दो बात हम यहाँ समझते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज को पिक करके एक टीम बनानी होती है, राइट। मीन्स व्हाट, अगर हमारे पास सेम स्किल के 3 से 4 एम्प्लॉय अवेलेबल हो जो पीएचपी के अंदर डेवलपमेंट के अंदर काम करता हो, तो उन 3 या 4 एम्प्लॉयज में से कितने एम्प्लॉय हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें कितने एम्प्लॉयज वर्क करेंगे, ये सब मैनेज करने की जो प्रोसेस है उसको हम टीम बिल्डिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि एनालिसिस के अंदर हमको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, डिजाइनिंग फेज के अंदर हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कोडिंग फेज के अंदर हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, ये सब बाइफर्गेशन करके हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूशन करने के लिए देना है, राइट, उस स्किल को और उस प्रोसेस को बेसिकली हम टीम बिल्डिंग बोलते हैं। सेकेंड थिंग जो टीम बिल्डिंग के अंदर हमें ऐड करनी होगी, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पर्टिकुलर स्किल का कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं हो, फिर से वो दोहराता हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पर्टिकुलर स्किल का और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई एम्प्लॉय अवेलेबल ना हो, तो उस एम्प्लॉय को हायर करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हायर करना है या तो फिर परमानेंट बेसिस पे हायर करना है, वो बात, ये सभी एक तरीके से टीम बिल्डिंग एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डेवलपर है उनको हायर कैसे करते हैं, तो पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब वो एम्प्लॉय और वो डेवलपर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और लीव करके जा सकता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय कहेंगे। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस काइंड का, किस तरीके का
एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है परमानेंट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी अरेंज करना, वो भी मैनेज करना काम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का, और उसको एज अ टीम बिल्डिंग स्किल कहेंगे। अगर हमारी टीम प्रॉपर होगी, टीम हमारी अच्छी होगी, तभी हमारा फाइनल रिजल्ट और वी कैन से फाइनल प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल डेवलप होगा। राइट, तो ये हमारी पहली स्किल थी इस टॉपिक में, टीम बिल्डिंग। सेकेंड स्किल मोटिवेशन, और वी कैन से मोटिवेटिंग स्किल। ओके, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसे प्रमोशन दें, या तो हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा इनकम दे, राइट, उसकी सैलरी में एक्स्ट्रा कटआउट दे। एक्स्ट्रा टाइम काम कराते हो तो उसका